With the aim of providing students a platform to showcase their creative talents, a grand art exhibition titled Kalakriti was organized at Gyan Bharati World School. Various paintings and artworks created by the students were displayed at the exhibition. The event was attended by Magad Divisional Commissioner A.N. Safina and renowned writer Dr. Tishya Shri as the chief guests. Both guests toured the exhibition and appreciated the artistic creations of the students. On the occasion, Magad Divisional Commissioner A.N. Safina praised the creative abilities of the students and said that such events provide students with an opportunity to showcase their talent and imagination. She emphasized that it is important to recognize children's interests and abilities and encourage them to move forward. According to her, art plays an important role in personality development, building confidence, and strengthening creative thinking among children. Gyan Bharati World School Principal Madhu Priya said that the art exhibition was organized to bring out the hidden talents of the students. She said that it is not necessary for every child to become a doctor, engineer, or IAS officer. If a child has a talent for art, they can achieve great success in life as a professional artist as well. Children should be encouraged to pursue the fields that match their interest and talents. Meanwhile, Dr. Tishya Shri said she was delighted to see the talent displayed by the students at the art exhibition. She said the children had presented extremely impressive and creative artworks. Sharing her own experience, Dr. Tishya Shri said that although she herself is a doctor, she chose to give importance to her passion and interest in art alongside her professional career. Teachers, parents, and a large number of students were present during the event. The exhibition provided the children with an excellent platform to showcase their imagination and artistic abilities before the public. देखो बहुत ही इंटरेस्ट हुआ। बहुत ही हमने इतना नहीं सोचा कि इतना अच्छा एग्जीबिशन होगा। आप लोग भी देखे होंगे तो राउंड द कॉर्नर थ्रू आउट द हॉल कितने अच्छे से ये पेंटिंग हमने सजाया है। ये अपने छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से लेके बच्चे अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये स्कूल का ये एटीट्यूड दिखा रहा है। ऐसे स्कूल शायद ही कोई स्कूल होगा पूरे बिहार में, नहीं बाकी राज्यों में भी हमने इतना टैलेंट को अपने जो निखर के लाने के लिए कोशिश जो कर रहा है, हमने ऐसे कोई स्कूल के बारे में नहीं सुना है ना देखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को अपने फ्यूचर में अपने करियर के साथ पढ़न पाढ़न में भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला स्कूल है ये। साथ में अपने जो बच्चों को जो टैलेंट आगे लाने में जो प्रयासरत है, इनका प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य जो टीचर्स है, सबको अपने बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या ब्लेसिंग देना चाहिए बच्चों को? पार्डन? बच्चों को क्या ब्लेसिंग देना चाहिए? बच्चों को यही मैसेज है, बच्चों को अपने जो पढ़न पाढ़न के साथ साथ अपने जो टैलेंट है उसको आगे बना के रखने के लिए अपने मेहनत करना चाहिए। साथ में अपने संयम रखना चाहिए। बच्चों को आज का जो सोशल मीडिया में जो अपने समय बिक जाता है, उससे बाहर आने के लिए भी एक तरीका है। अपने अंदर को जो कला को लाए सामने और उसी में अपने और मेहनत करके उसको और अपने ताकत लाए और उसको और निहार ले। तो आज आप सुने होंगे सब बच्चे रील के या मोबाइल के इसके पीछे जा रहे हैं। पेरेंट्स के साथ तनाव हो रहा है, घर में भी तनाव हो रहा है, स्कूल में भी तनाव हो रहा है। ये तनाव वाला सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने अंदर का जो सर्ग वासना है उसको लाने के लिए, सामने लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बच्चे अपने प्रयास करना चाहिए और साथ में जब इस तरह का जो माहौल मिलेगा, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे ग्रेडेड कलाकार बन जाएगा। मैं आज गया के ज्ञान भारती स्कूल में हूँ और आर्ट एग्जीबिशन सुन के मुझे लगा था कि जैसे हमारे टाइम में होता था होगा ऐसा नॉर्मल सा आर्ट एग्जीबिशन, बट मैं कहना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत हर एक पीस, हर एक आर्ट पीस इतना ज़्यादा खूबसूरत था और इतने सारे आर्ट फॉर्म्स देखने को मिले और तब समझ आया कि कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं आजकल के बच्चे। तो वाकई ज्ञान भारती स्कूल एंड मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि ऐसा प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं बच्चों को और इस लेवल पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल पेंटिंग्स बच्चे बना रहे हैं और आर्ट फॉर्म्स बना रहे हैं। तो मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या टिप्स बच्चों को आप? देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टरी पेशा छोड़ के और फिर अपने पेशे में हूँ, कविता के क्षेत्र में हूँ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरी आइकॉनिक लाइन है कि
लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो मैं वही बच्चों को भी कह रही थी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में वाकई कोई प्रतिभा है, आपको लगता है सिंगर, डांसर, पेंटर कुछ भी बन सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि समाज कह रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनना है। मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रतिभा को फॉलो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और वो करना चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। मैम आभार। आज हमारे विद्यालय में कलाकृति का 3रा वर्ष है। हम पिछले विगत 3 वर्षों से कलाकृति समारोह रख रहे हैं, आर्ट एग्जीबिशन। मेरा एक प्रधानाध्यापिका और एजुकेटर होने के मामले के नाते मानना ये है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के सक्षम नहीं हो सकता, और हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो बाकी काम कौन करेगा। तो एक आर्किटेक्ट बनने के लिए एक आर्टिस्टिक हाथ की ज़रूरत है, एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आर्टिस्टिक हाथ की ज़रूरत है। हम गार्जियन को पता भी नहीं चलता कि अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, CA से भी बहुत बड़ा बन सकता है। तो उसी स्किल सेट को निखारने के लिए पिछले 3 सालों से कलाकृति का आयोजन कर रहे हैं। पहले वर्ष जो हमने आयोजन किया था और आज 3रे वर्ष जो आयोजन हो रहा है, आप मीडिया बंधु हमेशा आते हैं और आपने वो बदलाव देखा होगा पहले साल से 3रे साल। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो गार्जियन हैं उनका बहुत सहयोग रहता है। अब वो समझ पा रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है और अपना पूरा सहयोग, ये सिर्फ बच्चों की प्रदर्शनी नहीं है, उनके गार्जियन की 2 महीनों की मेहनत है, क्योंकि एक आर्ट पीस बनाने में लगभग 10 दिन 15 दिन बच्चों को लगते हैं। आपने मेरा एक रील अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, एक मुस्लिम बच्चा नूरैन महादेव की पेंटिंग बना रहा है। इन बच्चों ने हमें क्या सिखाया कि हम मजहब, जात पात से ऊपर उठें, इन चीज़ों पे लड़ना बंद करें और मानव जाति का उत्थान करने का सोचें। जिस दिन हम इस सोच से ऊपर हो जाएंगे, हमारा देश बदल जाएगा। ये हमारा जो जेन ज़ी है वो इस देश को बदलने की मुहिम शुरू कर चुका है, और मेरा ये मानना है हमारे ज्ञान भारती के बच्चे भी उसी जेन ज़ी के लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी पेंटिंग से, आपने एक पेंटिंग देखी होगी, एक बच्चे ने आँख की पेंटिंग इतनी खूबसूरती से बनाई है। जब मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तुमने ये आँख ही क्यों बनाया, उसने बोला कि आँख हमारे मस्तिष्क और हमारे सोल को कनेक्ट करता है और मैं उसकी खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। एक 7th क्लास का बच्चा इतनी गहरी सोच रखता है।